اللہ سے معافی مانگو، سزائے موت ہوگی تمہیں. اپنی والدہ سے معافی مانگو، اس کی قبر سے، اس کی روح سے معافی مانگو. کیسا تم نے دردناک جو ہے واقعہ پیدا کیا، گندے انسان نہ ہو تو شرم آنی چاہیے. اتنا افسوسناک واقعہ کہ پوری دنیا جو ہے کانپ گئی ہے کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کو قتل کر رہا ہے. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جس موڑ پر روکا تھا وہیں سے ہم آپ سب کے لیے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان. ہونے والی اس نشاندہی کو تصدیق کرنے کی خاطر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تلاش کرنا شروع کر دیا. اس شخص کو تحویل میں لینے کے بعد جیسے ہی قانون کے اہلکاروں نے فوری طور پر ابتدائی تفتیش شروع کی، اس میں اس سے معلوم کیا گیا کہ تم اپنی ماں کو لے کر کہاں جا رہے تھے. پہلے اس نے ہر بات پر انکار کیا. اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں اپنے والد کے کہنے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچانے گیا تھا. اس کے بعد جب مزید معلومات کی گئیں تو اس شخص نے وہ سب بیان کر دیا کہ جو اس کے باپ نے پورا منصوبہ بنایا تھا. اور اس کی نشاندہی پر شکیل نامی شخص کو قانون کے اہلکار گرفتار کرنے نکل پڑے. اور یہاں پہنچنے کے بعد قانون کے اہلکاروں نے اسی طرح اس شخص کو حراست میں لے لیا. پہلے مدعی بڑے پھیر رہے تھے، چلو اب مقدم ہو گیا، چلو تم نے مارا، بھائی کیمرے میں آئے اور سی ڈی آر میں تمہارا ہی نمبر آ گیا. اب چلو مدعی کو پولیس ملزم بھی بنا دیتی ہے نا. چلو بھائی آگے لگو، ان کو لگاؤ ہاتھ پہ. ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان تمام تر قانونی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ان تمام اہلکاروں کو ٹاسک دیا، لیکن اندرون خانہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ انٹیلیجنس ٹیم کو بھی اس کام پر مامور کیا تھا کہ جس نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی خاطر مکمل کوششیں کاوشیں جستجو کی اور آخر کار یہ کیس اپنے انجام تک جا پہنچا. کیا نام ہے تیرا؟ محمد رحیل. ابو کا کیا نام ہے؟ محمد شکیل. کیا کام کرتے ہو؟ محنت مزدوری. یہ محنت مزدوری ہے، اپنی سگی والدہ کو مار دیا ہے. سوری تھا، غلطی ہو گئی تھی. خود سی ڈومر ہے. ایسی اولاد ہوتی ہے جو کہ والدہ کو قتل کر دیتی ہے، اور اتنی دور جا کے، اور اتنی بے شرمی تھے. بڑے بے شرم آدمی ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو. اب سچ سچ بتا، کیسے کیسے کیا ہے، صحیح سی بتا. یہ وہاں گھر سے نکلے ہیں، اب بولا میرے کو جو بھی چلیں شہر تھوڑا جا. میں نے کہا چلو بھی کام بن گیا. پھر اس کو اٹھایا، وہ ادھر سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں بار ڈی ایچ اے سے.
DHA फिर 13-16 पे आए हैं, 13-16 पे आकर फिर ऐसा बताओ ना, स्पीड ना मारो। जजमान नए हैं, अच्छा जजमानो फिर मुक्ति अड्डे पे फिर चनल पीर चले गए 98 चाक में DNP, अच्छा, उधर जाकर। क्या ये सही बता रहे हैं? CDR इस तरह जा रही है? हाँ बेशरम आदमी, ये बताओ कि तुम किस चीज़ पे आए थे? बाइक पे। बाइक पे किसे ली थी बाइक? जी अपनी ब्लैक। थी आपकी? जी नहीं बेशरम आदमी ना हो तो। किस चीज से मारा है अपनी माँ को? जी दुपट्टे से। और कौन था आपके साथ? मेरे वाल साहब सन, हैं? मेरे वाल साहब क्या नाम है उसका? शकील, वो कैसे आया है? वो बाइक से आया था, उसने क्या किया उधर? उसने टांगे पकड़ी थी, और आपने? मैंने गला दबाया था। आप शर्म कर, कुछ तो शर्म कर, सगी वालदा थी, बेहया। जी नहीं सर, वो सतोली सी मेरी थे, लेकिन पैसे थोड़े ठीक मांगे है थे तेरी माँ यार। जी मां थे, पैसे मांगे थे कारोबार करने के लिए, बेशरम मजदूरी इंसान। करता था, मजदूरी करता, पैसे मांगे, वो पिछले बेटियों को पैसे देती थी, उधर जगह मकान बनवा बड़ी रही थी। वैसे तुम गंदी औलाद हो ना, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। फिर वालिदैन उसके की। मार के किधर गए? जी पता नहीं, हम लोग उधर से आप निकल, किधर गए थे, आप और आपके अब्बू? जी वहाँ से निकल गए थे, कौन कौन? मेरे वाल साहब में एक मोटरसाइकिल पे अलग अलग? लहदा लहदा। कहाँ गए फिर? जी घर पर आए थे, फिर क्या किया आपने? घर आकर पूछताछ की थी किससे? घर वालों से। लोगों से? जी क्यों? जी हमारे पे शक ना, हम कहाँ कहाँ ढूंढा उसको? बहुत दूर दूर ढूंढना है। मतलब मुकम्मल ड्रामा किया है आपने, जिस तरह तू है इस तरह तेरा बाप है। गंदे इंसान, ये तुम बताओ कि तुम उधर वालदा को ले गए हो, उधर इतने टीले हैं, तो फिर उसको छोड़ के लावारस आ गए हो। जवान बेटे तो अपनी वालदा का ख्याल करते हैं, तो आप बड़े गंदे इंसान हो कि उधर फेंक के आ गए हो। जी नहीं, वालदा को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उनके पैरों में जन्नत है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इतनी उनको तकलीफ दी है और उधर लावारस फेंक के दोबारा तुम इधर आ गए हो। और शर्म टीलू नहीं में आती? जंगलों में छोड़ दो जंगलों उसको में आगे। छोड़। सॉरी सर, गलती हो गई अपनी सर, माँ से माफ़ी मांगो या अपनी फैमिली से माफ़ी मांगो। आप किससे हाथ जोड़ रहे हो? गलती हो गई सर। गलती होगी, अब अल्लाह से माफी मांगो, सजाए मौत होगी तुम्हें। अपनी वालदा से माफ़ी मांगो, उसकी कब्र से, उसकी रूह से माफ़ी मांगो। कैसा तुमने दर्दनाक जो है वाक़या पैदा किया, गंदे इंसान ना हो तो। शर्म आनी चाहिए। इतना अफसोसनाक वाक़या कि पूरी दुनिया जो है कांप गई है कि एक बेटा अपनी वालदा को कत्ल कर रहा है, और कितना मतलब संगीन तरीन जुर्म कर रहा है, और फिर कत्ल का जुर्म वैसे संगीन तरीन, फिर अपनी वालदा को तुम कत्ल कर रहे हो। बड़े गंदे आदमी हो, शर्म आनी चाहिए। इस मुकदमे के हालात इस तौर पर हैं कि शकील नाम के बंदे ने आमना नाम की औरत से दूसरी शादी की। शकील भी पहले शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी भी हयात है, आमना भी पहले शादीशुदा है, उसके पिछले खावन से बच्चे हैं। वो उसकी जायदाद बहुत ज़्यादा थी, शकील ने उस लालच में आकर उससे शादी की है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो औरत जायदाद के कुछ पैसे इनकम अपने पिछले बच्चों को देती थी, इसको ना देती थी। इसने अपने बेटे के साथ इसको कत्ल करने की साजिश की। फिर इसने प्लान बनाया अपने बेटे राहील के साथ कि आप इस अपनी अम्मी को लेके चन्नड़ पीर की तरफ चलें, मैं और रास्ते से आ रहा हूँ, इसको वहाँ जाके किसी डेजर्ट में कत्ल कर देंगे। फिर इसका बेटा जो राहील है वो अपनी वालदा को लेके 13 सोलंग DHA उससे होता हुआ यजमान आया, यजमान से ये मुक्ति अड्डा से चन्नड़ पीर गया है। फिर इसका वालिद जो दूसरे रास्ते से आया वो चांदनी, उस रास्ते से होता हुआ चन्नड़ पीर पहुँचा है। फिर इसको ये 98 चक है उसके डेजर्ट एरिया में ले गए हैं, टिब्बू में ले गए हैं। उस औरत के गले में जो दुपट्टा था उससे इसके बेटे ने गला दबाया है, इसने टांगें पकड़ी हैं, उसको मार कर ये वहाँ फेंक के वापस घर आ गए हैं। शकील ने जानबूझकर अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ फेंकी कि कोई लोग हम पर शक न करें। फिर ये वापस आकर अपने गांव में शोर शराबा कर दिया कि हमारी बीवी घर में नहीं है। लोगों के साथ करके ये वहाँ तलाश करते रहे, ड्रामा करते रहे, लेकिन इनकी किस्मत हार गई। पुलिस ने जब वहाँ मौका देखा, मौका देखने के बाद CCTV कैमरे चेक किए और इसकी मूवमेंट को मशकूक जानते हुए इसकी CDR निकलवाई। एक CCTV में इसका बेटा एक औरत को लेके जाते हुए नज़र आया है 13 सोलंग और DHA वाली रोड से, उससे हमें क्लू मिला। फिर इसकी CDRs आ गई, CDRs इसकी और इसके बेटे की सेम लोकेशन आ गई 98 में। फिर वहाँ से हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद अलग-अलग इंटरोगेशन की। इनकी इंटरोगेशन, इनकी मूवमेंट CDRs के मुताबिक टैली कर गई और अब ये ख़ुद भी मर्डर मान गए हैं। इन्होंने उसका गला दबा कर मार दिया है। अब हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया है, इनको रिमांड लेंगे, इनको
इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। क्या नाम है तेरा? शकील सर, क्या काम करता है? मैं रक्षा चलाता रक्षा चलाता है? कहाँ पे? हूँ शहर से, बावलपुर से। कैसे किया ये वकुआ? सच सच बता। सर जी अस पैसे आनू दे कोल बेटा मेरे को तंग कर क्या दिया। लगती थी तेरी? बेगम कितनी बेगमात है तेरी? 2 ये कौन से नंबर वाली थी? दूसरी क्यों थी मारा है इसको? सर जी पैसे मंगिया सी, अच्छा इंदे जदाद सी ढेर। अच्छा मैं के बेटा मेरा पैसे मंग दे दे दो, अच्छा, उनकी वजह किने मारी। जल्दी से बताओ कैसे किया है? सर जी उठूँ रमा पटक दूँ अच्छा बेटे को, मैं आखे तुम इधर जो निकलो। अच्छा मैं टेल वाले से आया चांदनी चौक, अच्छा, उतों सीधा 98 तक किस चीज़ पहुंचे पे आए हो? मोटरसाइकिल से। अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ 98 ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। अच्छा ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ अच्छा, ਤੇ ਮੁੰਡਾ बेगारत आदमी जोर से बताओ। ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। तुमने क्या किया है? ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, तेरे बेटे ने? ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਚੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, फिर क्या किया? ਬਸ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। हाँ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। फिर ਆ ਗਏ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰ उसको ਕੇ। दफन नहीं किया? ਨਹੀਂ ਸਰ, फिर कहाँ चले गए? ਅਸੀਂ ਵਾਪसी चले गए। किस रास्ते से गए हो? वापसी गए हैं इधर से चांद चौक से गए। कोई शर्म हया नहीं आई? कोई जमीन ने मलामत नहीं किया आपको? सर जी गलती हो गई है। कोई गैरत, कोई बस इंसानी हमदर्दी? हमदर्दी सर, असल पैसे की लालच याद है ना। दूसरी एक अच्छा, शनाख्ती कार्ड क्यों फेंका वहाँ पे? सर जी असा कोई शक ना करे सर क्यों? भाई शनाख्ती कार्ड दे कोल हन ये नाल ही। फिर घर जाकर क्या किया है? घर पूछे थे आंढ गुआंढ तो घरों, फिर उन्हें आके पता नहीं साकुदा नहीं पता। चलो, असल लोग ने इंतजाम जमीन मलामत नहीं किया आपको? नहीं सर माफी। शर्म नहीं आई? सर जी माफी दे बंदे दो, को मार रहे, कोई आपको कुछ शर्म आई हो, गलती गैरत हो आई गई हो? ना सर, गलती हो अब गई। एक औरत को लाचार को उधर फेंक के आ गए हो। पैसे की लालच दे दे बेशरम आदमी ने अपनी वाइफ को तुम रेत के टीलों में फेंक के और ऐसे आ गए हो। आपने उसके साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी है और इतना आपने अफसोसनाक वाक़या ये किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, इंसान हैं। तो अगर बीवी खामन से महफूज ही नहीं है तो फिर आप बड़े गंदे इंसान हो। शादियों की आपको पड़ी हुई है, पैसों की पड़ी हुई है, औरत की जान की, उसकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत आप करते नहीं हो। बड़े गंदे इंसान हो। सर जी माफी दे दो। अब तो अब जब फांसी लगेगी ना फिर पता चलेगा। तबीयत ठीक हो जाएगी। माफी मांग देखने हैं सर, बेहया माफी दो, आदमी। गलती हो गई है। नाजरीन, इस पूरे केस को आप तक पहुंचाने दिखाने की खातिर हम ये कोशिशें करते रहे कि हर एक को इस बात का एहसास हो जाए, हमारे तमाम टेलीविजन देखने वाले लोगों को इस बात का इल्म हो कि अक्सर हिर्स, हवस और लालच में इंसान मौत के दरवाजों तक जा पहुंचता है। और याद रखिए, किसी को दुख देने के बजाय इंसान को एक लम्हा ये ख्याल आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा दुख मुझे भी झेलना पड़े। परवरदिगार आलम हर एक पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए कि हमें इस दुनिया में मालिक मुख्तार बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि हम अल्लाह की अमानत हैं और हर एक को लौट कर अल्लाह की जानिब जाना होगा। और वहाँ इस दुनिया में गुजरे एक एक लम्हे का एहतसाब किया जाएगा। ठीक है, दफा करो इसको, ले जाओ बेशरम आदमी को। और ये कत्ल मान गए कि हमने ये आमना को कत्ल किया। 98 DB इतला मिलती है कि एक खातून की लाश मिली है जो कि एक दिन पुरानी है। जब जाके चेक किया जाता है तो पता चलता है कि आमना बीबी की ये लाश है। उसका शौहर शकील ये बताता है कि उसकी बेगम एक दिन से गायब थी। साइंटिफिक एविडेंस के बाद, मौजूदा तमाम तहकीक करने के बाद ये पता चलता है कि असल में शकील ही आमना को अपने एक और बेटे राहील के साथ मार देता है। क्यों? क्योंकि वो तीसरी शादी करना चाहता है। और राहील इसमें अपने वालिद साहब का क्यों साथ देता है? क्योंकि आमना उनसे पैसे लेकर अपने पहले शौहर की औलाद को बेचती थी। मुल्ज़िम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पे बात आएगी मेरिट पे, साइंटिफिक एविडेंस पे तफ्तीश करने पे, तो इंशाअल्लाह ताला भावलपुर पुलिस बिल्कुल मेरिट्स का ख्याल रखेगी। Criminals most wanted.